Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today we will discuss modern philosophical perspective on education and naturalism. First of all, we will discuss the objectives of this unit. After reading this unit, students will be able to define idealism and realism, compare idealism and realism, analyze curriculum on the basis of idealism and realism, discuss the main tenets of idealism and realism, evaluate the role of realism in the history of education, define naturalism, pragmatism and existentialism, identify similarities and differences among naturalism, pragmatism and existentialism, analyze teaching learning process to the basis of naturalism, pragmatism and existentialism, discuss the main tenets of naturalism, pragmatism and existentialism, evaluate the role of modern philosophies in education. Aristotle is the father of realism, later on modified by Germore, Russell, John Wilde. Things we see or perceive are real and knowledge acquired through senses only is true and valid. Definition according to them. In J.S. Rowe's opinion, the doctrine of realism asserts that there is a real world of things behind and corresponding to all the objects of our perception. According to Butter, realism is the reinforcement of our common acceptance of this world as it appears to us. Different philosophers have different opinions and different perception about realism, about this school of thought. Main beliefs of realism: physical objects are also real. Existence of objects are independent of knowledge. Qualities are inherent in known objects. Knowledge does not affect the object or its qualities. Knowledge of objects is direct. Objects are common. Relation between object and thoughts. These are the main beliefs according to realism. वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करती हैं, उनके रियलिस्टिक चीज़ों की बात करती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस की बात करती हैं. वो कहते हैं कि जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं अपने इंडिपेंडेंट वो नॉलेज रखती हैं. इसके अलावा इनहेरेंट जो है क्वालिटीज़ की बात करती हैं, कल्चर को प्रमोट करने की बात करती हैं. और वो कहते हैं कि ये जो नॉलेज है वो ऑब्जेक्टिव से जो है वो जो है अफेक्ट नहीं होता और हम डायरेक्ट नॉलेज गेन करती हैं और ऑब्जेक्टिव जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन होती हैं. रैशनल बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड थॉट, ठीक है. तो इसमें रिलेशनशिप डिवेलप होता है और रैशनल थॉट्स को वो प्रोवोक करते हैं. रियलिज्म इन एजुकेशन: प्रिपेयर फॉर अडल्टहुड, कन्फर्म टू नेचर. ठीक है, ये देखिए जैसे रियलिटी है तो हमारा माइंड क्या परसीव करता है, हम अपनी सेंसेस को ब्रेक कर ला के क्या सोचते हैं, हमारी थॉट्स, मेमोरीज, आइडियाज़, थिंकिंग, परसेप्शन. तो इसको जो है वो कहते हैं कि जो रियलिटी है जो हम परसीव करती हैं वो साइंटिफिक नॉलेज भी हो सकता है, साइंटिफिक बेस भी हो सकता है, एविडेंस बेस भी हो सकता है. रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन: प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर अ रियल लाइफ, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, फोस्टर मेंटल एंड फिजिकल पावर्स ऑफ चाइल्ड, developing and training of senses, provide vocational education, make the child familiar with the nature and social environment. तो अकॉर्डिंग टू देम एम ऑफ एजुकेशन कहते हैं कि बच्चे को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, उसको हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ के काबिल बनाना है, मेंटल फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करना है, उसकी सेंसेस की ट्रेनिंग करना है, उसको कोई वोकेशनल स्किलफुल एजुकेशन सिखानी है और उसको अपने नेचर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से उसको फेमिलियर करना एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ है. According to them, curriculum should be the child should be allowed to choose subjects according to his ability from detailed curriculum. तो ये कहते हैं कि बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको करिकुलम को जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए. He should be taught what is useful in his life, learning according to one's abilities. Subjects should be planned according to the needs of the society. Education should enable the student to adjust to changing social circumstances. The curriculum should have utility. Aristotle was the pioneer of curriculum of medical sciences. The curriculum should lay emphasis upon science subjects, physics, chemistry, biology, astrology, etc. इसमें भी ये कहते हैं कि बच्चे को अपनी पसंद के जो है सब्जेक्ट्स को इख्तियार करने का जो है पूरा हक हासिल है कि वो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो वो चाहता है वो सब्जेक्ट और वो करिकुलम जो है वो चूज़ करे. और वो कहते हैं यूज़फुल करिकुलम होना चाहिए जिसकी आगे लाइफ लॉन्ग वो उसकी लर्निंग हो, उसकी एबिलिटीज़ को पॉलिश करे और उसमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट्स में और बच्चों की और सोसाइटी की नीड्स को मद्देनज़र रखा जाए और ताकि स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जो सोशल सर्कमस्टांस है उसके साथ जो है वो एडजस्ट कर सकें. इस तरह से एजुकेशन का पर्पज़ होना चाहिए. ठीक है, यानी वो सोसाइटी में जो चेंज है उसको एक्सेप्ट कर सकें, इसके करिकुलम में यूटिलिटी होनी चाहिए और ये डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स को प्रोवोक करते हैं उनके
पायनियर भी समझे जाती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम मेथड्स ऑफ टीचिंग लेक्चर मेथड है, रिसाइटेशन है, लैब्स ऑडियो विजुअल एड्स हैं, वर्ड्स एंड थिंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग, इसमें लॉजिकल बेस्ड नॉलेज भी आ जाता है। सजेस्टेड लर्निंग एक्टिविटीज़ इन रियलिज्म, activities concerned with language, activities concerned with hygiene, citizenship activities, ordinary social activities, layer activities, activities of mental health, religious activities, activities concerning race preservation है, vocational behavior activities है, vocational activities है, ठीक है। तो इसमें वो ये कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड में कह रहे हैं कि लैंग्वेज को प्रमोट करें, हाइजीन को उससे रिलेटेड होनी चाहिए एक्टिविटी जो आपको मेंटल और फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग करें और आपको एक अच्छा सिटीज़न बनाएं, उस तरह से रिलेटेड होनी चाहिए। सोशल आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और ऑर्डिनरी सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए बच्चे को, ठीक है। फिर मेंटल हेल्थ से, आपके रिलीजियस पर्सपेक्टिव से और वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो आपके ताकि बिहेवियर पैटर्न जो है वो आपका एक स्मूथ हो सके और जेंटल आप जो है वो बिहेव करें। Contribution of realism to education. Like other systems of philosophy of education, realism has its advantages and disadvantages. Its impact can be seen everywhere. The realistic philosophers influence practical education. In 7th century, academics for the teaching of natural sciences developed everywhere in Europe and later on in America in 18th century. Technical and vocational education has become a common feature of education everywhere. Thus, the following may be considered to be the contribution of realism to education. एजुकेशन में रियलिज्म वालों की जो कंट्रीब्यूशन है वो ये कहते हैं कि इसके अगर हम प्रो एंड कॉन्स को देखें तो इसका इम्पैक्ट जो था बाद में भी आने वाली जो फिलोसफर्स थे और जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे उस पर भी इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था एरिस्टोटल को और रियलिज्म को, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। और वही कहते हैं कि क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच को इन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ इंटरलिंक किया था एजुकेशन को, और 17th सेंचुरी में जो है इसकी जो नेचुरल साइंसेस का जो बहुत ज़्यादा जो काम है, डेवलपमेंट है, वो यूरोप में हुई थी, लेकिन बाद में 18th सेंचुरी में अमेरिका में भी इस पर काफ़ी वर्कआउट हुआ था। इसके अलावा टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से जिन्होंने बात की थी उसकी भी कॉमन फीचर जो थे, मतलब कि इसको भी अप्रिशिएट किया गया था, अप्लाई किया गया था एजुकेशन की फील्ड में हर जगह पे, ठीक है। और इसलिए इनके रियलिज्म को बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन की जाती है एजुकेशन की फील्ड में। एजुकेशन इन टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बेसिस हैं, प्रैक्टिकल एम्स हैं, वाइडिंग ऑफ स्कोप है, साइंटिफिक टीचिंग मेथड्स हैं, ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड हैं, सेंस ट्रेनिंग है, रियलिस्टिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, टू मच एम्फोसाइज ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड टू मच एम्फोसाइज ऑन फैक्ट्स, पॉजिटिविज्म एंड मेलोरिज्म। इसमें वो ये कह रही है कि ये जो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको उन्होंने काम किया था एजुकेशन में, इसका बहुत ज़्यादा वाइडिंग स्कोप था, साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज की उन्होंने बात की थी, सेंस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल इम्प्लीमेंट करने की, और उन्होंने कहा था कि एजुकेशन को वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, यूजफुल लर्निंग होनी चाहिए, और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, साइंटिफिक मेथड्स पे जो है बेस करती हैं, और आपकी सेंसरी मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए। कंपैरिजन ऑफ आइडियलिज्म रियलिज्म, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। अगर हम पर्पज़ ऑफ एजुकेशन के हवाले से बात करें तो आइडियलिज्म में क्या है, प्रिपेयर फॉर अडल्टहुड, conform to super force, while in realism prepare for adulthood, conform to nature. According to curriculum, liberal arts, humanities, the terrorism, and in realism, science, math, social sciences, the quadrivism. Curriculum emphasize in realism cognitive knowledge, skills with words, while in realism cognitive knowledge, skills with science. Approach to subject matter structured है, rigid curriculum, pre-existing reality, while in realism structure, rigid curriculum, external reality. Subject matter and knowledge, finite, known to super force revealed, while in realism objective है, natural sciences और observation based. रोल ऑफ टीचर, आइडियलिज्म में मॉडल ऑफ मॉरलिटी है, स्कॉलरशिप एंड मेंटोर है, क्रिस्मेटिक, while in realism मॉडल ऑफ साइंस एंड स्कॉलरशिप, मेंटोर, कंडक्ट। मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन में है, लेक्चर है, रिसाइटेशन है, एसे, वर्ड्स, डिपेंडेंट, डायलेक्टिकल, वाइल इन रियलिज्म लेक्चर, रिसाइटेशन, लैब्स, ऑडियो विजुअल एड्स, वर्ड्स एंड थिंग्स। एजेंट ऑफ चेंज, अकॉर्डिंग टू अर्ली रियलिज्म, लर्न, टाइम टेस्टेड, प्रिजर्व, स्टेटस, क्वेश्चंस, ट्रेडिशंस, एंड इन रियलिज्म टेस्ट एंड वेरीफाई, एवोल्यूशन इन नेचर इज स्लो ऑर्डर,
परमानेंस एंड चेंज, एब्सोल्यूटिज्म परमानेंस ट्रेडिशन है, वाइल इन रियलिज्म एब्सोल्यूटिज्म नेचुरल एवोल्यूशन और टेस्टेड. टीचर्स पावर रोल ट्रेडिशनल, एडल्ट्स नो, children do not, example of the ideal. While in realism traditional authoritarian, example of nature. स्कूल रूल्स में है ट्रेडिशनल है, टाइम टेस्टेड, वाइल इन रियलिज्म ट्रेडिशनल बट नॉर्म टेस्टेड. लर्नर एक्सपेक्टेशन में ओबीडियंस, स्कॉलरशिप, कंफॉर्मिटी, वाइल इन रियलिज्म ओबीडियंस, स्कॉलरशिप एंड कंफॉर्मिटी. नाउ कम्स टू द नेचुरलिज्म. Rousseau was the father of naturalism. Naturalism is the philosophy that separates nature from God, subordinates spirit to matter, and set up unchangeable laws as supreme. In naturalism, efforts are made to develop personality of a child in order to make him a natural man. According to naturalism, the personality of the child disintegrates in the attempts for making it cultured and civilized. रूसो को जो है वो फादर समझाते हैं नेचुरलिज्म का, और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी, इन्होंने अपनी बुक में एम्पायर में सारा डिस्कस किया था. अपनी बायोग्राफी के हवाले से बात करती हैं कि जब उनकी पैदाइश के वक्त इनकी मदर का इंतकाल हो गया तो वो कहते थे कि मेरी माँ को मेरी पैदाइश की कीमत चुकाना पड़ी. बाद में इन्होंने नेचर के करीब रह के, फितर के करीब रह के उनकी लर्निंग थी स्टार्ट में, जो उनकी अर्ली चाइल्डहुड टाइम पीरियड था, तो ये नेचर के करीब रह के कहती है कि बच्चा अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से और नेचर के करीब रह के जो है वो सारी चीज़ों को लर्न करता है, खुद से डिस्कवर करता है, एक्सप्लोर करता है, और नेचुरल वे में उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के थ्रू जो है वो लर्निंग करता है नेचुरल वे में. ठीक है. रूसो इन हिज बुक एम्पायर एडवाइसेस टू फॉलो द नेचर. वो कहते था कि बच्चा जो अपनी फितरत पे पैदा होता है और अपनी फितरत पे ही उसकी जो है वो ग्रूमिंग होती है. अकॉर्डिंग टू हिम द टीचिंग प्रोसेस शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट, रादर इट शुड बी मेड ईजी as far as possible, and children should get opportunities for contact with nature, experience reality directly, and discover the process of learning themselves instead of making them dependent or written words. ठीक है. तो कहते हैं कि टीचर को जो एजुकेशन प्रोसेस है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, बच्चे को डिफरेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसे सोर्सेज जिससे वो अपनी एक्सपीरियंस करे, रियलिटी के करीब डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस सीखे, डिस्कवर करे, खुद से लर्निंग को एक्सप्लोर करे, थिंकिंग प्रोसेस करे, अपने ऊपर इन्हिसार करना सीखे, बजाय इसके कि वो रट्टा सिस्टम पे इन्हिसार करे. अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर, दैट इज़ फिजिकल नेचर एंड साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड. They believe that when psychology of child corresponds with physical nature, then only learning happens. ठीक है. वो कहते हैं कि जो बच्चे की नफ्सियात हैं और जो फिजिकल नेचर है जिससे इंटरेक्ट करता है, तभी उसकी नेचुरल वे में लर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म. नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, सो द चाइल्ड शुड बी एनकरेज टू लर्न विद द नेचर. तो कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी जो है वो नेचर ही है, इसलिए बच्चे को नेचर के करीब रह के जो है उसको इनकरेज करें, उसकी हौसला अफजाई करें कि नेचर के करीब रह के नेचुरल वे में जो है अपनी लर्निंग को जो है वो बूस्ट करे. और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ एक्सप्लोर करे चीज़ों को, सेल्फ एक्सपीरियंस करे, लाइफ एक्सपीरियंस से, रियलिटी से बेस्ड एक्सपीरियंसेस से जो है वो लर्न करे. इट गिव्स फुल फ्रीडम टू द चाइल्ड सो दैट दे कैन लर्न वट एवर दे वांट. वो कहते हैं बच्चे को फुल फ्रीडम होना चाहिए, वो जो सीखना चाहे उसको सीखने का इख्तियार होना चाहिए. According to this philosophy, senses are the gateway of knowledge. They encourage negative education and discourage traditional teachings. तो वो कहते हैं कि बच्चे को अपनी सेंसेस को बुरे कार ला के लर्निंग को जो है वो गेन करना चाहिए, नेगेटिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, और ये रिजिड हैं, खिलाफ हैं, जो हैं वो उसके डिस्करेज करती हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग लेक्चर मेथड के जो है ये खिलाफ हैं. इन एडिशन दे बिलीव इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड अपोज बुकिश नॉलेज. ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फ़रोग देते हैं, प्रमोट करते हैं, और ये जो टीचर सेंटर है बुकिश नॉलेज को हैं जो डिस्करेज करते हैं. दे सपोर्ट साइंस एजुकेशन एंड हैज़ नो फेथ ऑन सोल. अकॉर्डिंग टू देम एम ऑफ एजुकेशन जो है, एजुकेशन शुड एम एट परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी. इट सर्व्स एज अ मीन टू अटेन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर हैप्पीनेस. Indeed, education should enable a child to adapt with their environment. In particular, education prepares the child for future struggle of life. To enhance self-expression of the child, it should aims at natural development of the child. ठीक है. तो वो कहते हैं कि बच्चे की जो एजुकेशन का पर्पज़ क्या है कि उसकी थ्रू आउट जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, इंडिविजुअलिटी की, उसकी पर्सनालिटी की. और वो कहते हैं कि बच्चे को फ्यूचर हैप्पीनेस के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और एजुकेशन का पर्पज़ है कि बच्चे को इस काबिल बनाए कि वो अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर सकें और बच्चे को फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सकें. सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को
एक्सप्लोर कर सके, जान सके, और इस तरह नेचुरल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की। करिकुलम फ्रेमिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। Principle of child-centered education, that means curriculum should be framed according to the needs, interest, aptitude of students. Principle of flexibility, that seeks a flexible curriculum according to the need. The principle of activity and play or activity-based curriculum. Principle of life-centeredness, that means curriculum should relate with the life of the people. The principle of scientific study. Principle of broad-based curriculum with equal emphasis on past, present and future. Moreover, gives importance to the subjects like nature study, agriculture, grading, art, craft, botany, zoology, geography, etc. अब वो कहते हैं कि करिकुलम के प्रिंसिपल कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए। इसमें वो कहते हैं कि बच्चे के लिए उसकी नीड्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम को बिल्ड करना चाहिए। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम के अंदर, और जो सोसाइटी की नीड्स है, बच्चे की नीड्स हैं, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। एक्टिव लर्नर बनाना चाहिए बच्चे को, और उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए करिकुलम को में। उसमें से प्ले वे मेथड भी होना चाहिए, और उसको होल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए बच्चे को। उसमें साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, उसका ब्रॉड स्कोप होना चाहिए, उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात होनी चाहिए। इसके अलावा वो साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा जो है वो अदर आर्ट सब्जेक्ट्स को भी प्रमोट करती हैं। मेथड ऑफ टीचिंग इन नेचुरलिज्म। Learning by doing method in order to ensure active involvement of students in the teaching learning process. Play-way method, learning by experience or activity method, self-government and self-effort of students to learn by themselves. Observation method, where students observe their surroundings, environment, people, things and learn from his observation. They follow different methods of teaching according to the interests, capabilities, capacities, aptitude of the child. Others, apart from this method, naturalists adopt Dalton plan, kindergarten, exertion method, Montessori method, experimentation method. जी, तो इसमें नेचुरलिज्म में कह रहे हैं कि अदर मेथड को भी अप्रिशिएट करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का है, उसमें कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को जो है उसकी टीचिंग प्रोसेस जो है वो लर्निंग प्रोसेस है, इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एक्टिव माइंड के साथ लाइफ एक्सपीरियंस करे, और सेल्फ एफर्ट भी होनी चाहिए जिसमें वो खुद एक्सप्लोर करे। ऑब्जर्वेशन मेथड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड होना चाहिए, और डिफरेंट मेथड्स को भी वो कहते हैं कि बच्चे की इंटरेस्ट और एटीट्यूड की एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। रोल ऑफ टीचर इन नेचुरलिज्म। टीचर मस्ट बी अ फ्रेंड ऑफ द चाइल्ड. Also, teacher should behave sympathetically and affectionately towards the child. Particularly, nature is the supreme teacher. The teacher should understand about the child, his interests, his needs. Teacher is called to be stage setter who gives the stage to students to learn by themselves. Teacher should create and facilitate learning situations or environment so that students learn themselves. टीचर का रोल क्या है? फ्रेंडली होना चाहिए, फैसिलिटेटर को होना चाहिए, बच्चों के साथ हमदर्दाना और यानी अफेक्शनेट यानी प्यार भरा जो है जिसमें शफकत भरा होना चाहिए। और प्रैक्टिकली नेचर, वो कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल नेचर जो है वो आपका सुप्रीम टीचर है, कि अल्टीमेट जो है नेचर है, फितरत है, आपकी लाइफ एक्सपीरियंस ही है जो आपका सबसे बड़ा उस्ताद है। और टीचर को चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसका वो किसके लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग फिर सबको मद्देनज़र रखना चाहिए टीचर को। और उसको बच्चों के लिए डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, लर्निंग के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने चाहिए, लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि बच्चे खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करके सीख सकें। डिसिप्लिन इन नेचुरलिज्म। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो नेचुरलिस्ट गिव्स फुल फ्रीडम टू द चाइल्ड टू परफॉर्म एज वेल एज लर्न वट एवर ही लाइक्स. देयर इज़ फुल फ्रीडम, फ्री सोसाइटी एज वेल एज नो पनिशमेंट. Moreover, naturalist assumes that the child has no knowledge of good and bad, but he suffers pain when he makes a mistake and pleasure when he does something right. Thus, he gets reward or punishment of his action. वो कहते हैं कि बच्चे को आप फुल फ्रीडम दे दें सोसाइटी के अंदर, और लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है बच्चे को पता होना चाहिए। वो कहते हैं उसको फ्रीडम दें सोसाइटी में, उसको पनिशमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, वो ये इतना करते हैं कि अगर बच्चा जो है कुछ गलत करता है, कुछ गलत करेगा तो वो खुद से गिल्ट फील करेगा और तकलीफ़ महसूस करेगा कुछ गलत करने पे। और अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसको सेल्फ इनर सेटिस्फेक्शन होती है और प्लेयर फील करता है कि उसने कोई अच्छा काम किया है। इस तरह वो कह रहे हैं कि वो खुद से अपने अमल पे या उसको रिवार्ड और पनिशमेंट जो है वो खुद से अपने एक्शन पे वो ले लेता है, और इसलिए हमें उसको खुद फोर्सफुली जो है वो पनिशमेंट या रिवार्ड नहीं देना चाहिए और उसको फ्रीडम देना चाहिए बच्चे को। मेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म क्या हैं? It gives the child a very important place in the educational process.
It treats a child as child, not as adult. The child is a good and pure at the time of birth. Further, it considers nature as the best teacher in whose company the child learns better because society is full of evils. It considers individual interests, aptitude, inclination, needs, and capacities while structuring the curriculum. It prepares and encourages the child to engage in experimentation, discoveries, and inventions. इट मोटिवेट्स द चाइल्ड टू एक्वायर मोर नॉलेज इन नेचुरल एनवायरनमेंट। अब वो ये कह रहे हैं कि इसके एडवांटेज ये है कि बच्चे को उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है और बच्चों को उसने बच्चों की तरह ट्रीट किया है, जबकि अडल्ट नहीं समझा। और बच्चा जो है मतलब जब वो एक छोटा सा होता है, जब पैदाइश होती है तो वो बिल्कुल इनोसेंट होता है लाइक एंजल। तो वो कहते हैं कि बच्चे को वो कहते हैं कि जी उसका अल्टीमेट टीचर नेचर ही है। बच्चा खुद ही सोसाइटी से चीज़ों को सीख लेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत सी बुराइयाँ भी होती हैं हमारे ये जो है, अगर बैड कंपनी बैठेगा तो डेफिनेटली वो बुरी चीज़ें वो है वो पिक करेगा। तो बच्चे के इंटरेस्ट एप्टीट्यूड को देखना चाहिए, उसकी नीड्स क्या हैं और करिकुलम को स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसलिए वो इनकरेज करते हैं कि बच्चे को एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, डिस्कवरी मेथड जो है उसमें एंगेज होना चाहिए ताकि मोर नॉलेज को वो गेन कर सकें। अब कुछ लोगों ने इस पर स्कूल ऑफ थॉट पे जो है क्रिटिसाइज़ किया था, उसके डिमेरिट्स जो है वो सामने आए थे। तो क्रिटिसिज्म वालों ने यही कहा था कि नेचर सेंटर्ड स्टडी मेक्स अ चाइल्ड अनसोशल विद नो फीलिंग्स ऑफ सोशल सर्विस। अगर हम बच्चे को बिल्कुल नेचर के करीब रखेंगे तो वो एंटी सोशल हो जाएगा। नेचुरलिज्म इग्नोर्स द स्पिरिचुअल वर्ड्स एंड कंसीडर द मटेरियल वर्ड्स ओनली। वो कहते हैं कि ये बच्चे को सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ड की तो ये जो है वो बात नहीं करते, ये सिर्फ बच्चे को जो है नेचर के करीब जो है वो कहते हैं इसकी लर्निंग होनी चाहिए। तो ये भी गलत है। नेचुरलिज्म लेज स्ट्रेस ऑन सोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स एंड निगलेक्ट्स हिज फ्यूचर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। तो कहते हैं प्रेजेंट की बात करते हैं, फ्यूचर नीड्स उसके सोल्यूशन प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते। As a result, it has failed to prepare a child for future life. Naturalism advocates unrestricted freedom for the child, which is undesirable and harmful for the children. तो वो कहते हैं कि बच्चे को इतनी ज़्यादा फ्रीडम भी देना मुनासिब नहीं है कि वो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है, उसको अपनी सही और गलत का नहीं पता होता। इट मिनिमाइज द रोल ऑफ टीचर इन द एजुकेटिव प्रोसेस। कि टीचर का रोल बहुत लिमिटेड है, फ्रेंडली है, फैसिलिटेटर का है। Therefore, teacher is merely an observer, sympathetic, guide and help in structuring experience for the child. कि जस्ट वो एक उनको गाइड कर सकता है, हमदर्दी कर सकता है, उनको रहनुमाई कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है और बच्चे को खुद से उन्होंने फुल फ्रीडम दे दी है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था नेचुरलिज्म को। नेक्स्ट हम प्रैग्मेटिज्म को डिस्कस करेंगे। इनके जो प्रोपोनेंट्स हैं उनमें हैं चार्ल्स सैंडर्स, पायर्स हैं, विलियम जेम्स हैं एंड जॉन डेवी है। जॉन डेवी का ज़्यादा इनके कॉन्ट्रीब्यूशन और नेम है। अकॉर्डिंग टू रोज, pragmatism is essentially a humanistic philosophy maintaining that man creates his own values in course of activity, that reality is still in making and awaits its part of completion from the future। तो ये रोज़ ने इसको डिफ़ाइन कर प्रैग्मेटिज़म को, और वो कहते हैं कि मतलब कि ये जो फ़िलासफ़ी है ये मेंटेन करती है इंसान को इस तरह से प्रिपेयर करती है कि उसकी क्या मोरालिटी है, क्या वैल्यूज़ हैं, स्किल बेस्ड नॉलेज की बात करते हैं, और वो कहते हैं नेचर की और फ्यूचर लाइफ के हवाले से उसको प्रिपेयर करती है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्या है? मैन इज़ कंसिडर्ड एज एन एसेंशियली बायोलॉजिकल एंड सोशल ऑर्गेनिज्म। Knowledge should be experimentally verified and it should be useful to the learner. Pragmatism has faith in man's capacity to shape his destiny. There are no absolute values, all values are relative. What works as useful becomes a value. Only those theories which can work in practical situations are true. अब प्रिंसिपल्स की अगर बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म में, तो कहते हैं कि जो मैन है उसको वो कहते हैं बायोलॉजिकल सोशल ऑर्गेनिज्म है, और नॉलेज को कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड जो है वही ऑथेंटिक है, और इंसान को अपनी कैपेसिटी को जो है वो प्रैग्मेटिज्म उनका ये बिलीव है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, कि मैन कैपेसिटी टू शेप हिज डेस्टिनी, कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, और वो मेहनत करेगा, एक्सप्लोर करेगा चीज़ों का, वट इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी, वट इज़ द मॉरल वैल्यूज़। तो वो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करके साइंटिफिक बेस्ड मेथड पे टेस्ट करके जो है वो नॉलेज गेन करेगा, यूजफुल नॉलेज और वैल्यूज़ को वो अटेन कर सकता है। थेरीज बेस्ड नॉलेज को कहते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस में वर्क करती हैं, जो ट्रुथ पे बेस करती हैं, एविडेंस होता है, एक्सपेरिमेंटल टेस्टेड होती हैं, वेरीफाइड होती हैं। प्रैग्मेटिस्ट इज़ मोर कंसर्न विद द प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर। Pragmatism accepts only the knowledge which is empirical, which can be experienced at sensory level. Only those ideas which can be realized in life are real. तो कहते हैं कि वही उनके लिए जो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, जो टेस्टेड हैं, वेरीफाइड हैं, और जो रियल लाइफ पे बेस करती हैं, रियलिटी के करीब हैं।
pragmatism and aims of education, हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल है, कॉन्टीन्यूस एक्सपीरियंसेस हैं, सोशल एफिशिएंसी है। तो उनके नज़दीक एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है डेवलपमेंट करना, आपकी कॉन्टीन्यूस वो कह रहे हैं कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से क्या सीखते हो, लाइक लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह आपको सोशल एजेंट बनाना। और प्रैग्मेटिज्म में मेथड ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग जो है उनका क्या रोल है, वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव लर्निंग की बात करती हैं, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वो कहती है कि सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेशन होनी चाहिए और यानी कि एक सब्जेक्ट दूसरे से जो है इंटरलिंक होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग का है, एक्सपेरिमेंटल है और प्रोग्रेसिविज्म पे बेस करता होना चाहिए अपना एजुकेशन सिस्टम। नाउ कम टू द एग्जिस्टेंशियलिज्म। इट इज़ यूरोपियन फिलोसफी पॉपुलर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। एक्सपोनेंट जो है इसमें है मैक्सिम ग्रीनी है, जॉर्ज केलर है और वैन केलर मॉरिस। प्रिंसिपल जो है इसकी हैं एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, नो इनबॉर्न ह्यूमन नेचर, सेंचर ऑफ एग्जिस्टेंस इन मैन रेदर देन ट्रूथ लॉज, मैन इज़ द मेकर मास्टर ऑफ द कल्चर, मैन इम्पोजेज मीनिंग ऑन हिज और हर ओन universe, we are born and exist, then we ourselves freely determines our essence। ठीक है, एग्जिस्टेंशलिज्म वाले जो हैं स्कूल ऑफ थॉट जो है ये भी कल्चर को प्रमोट करती हैं, सोसाइटी में चेंज की बात करती हैं और कहती हैं कि अगर हम जिद्दत को पसंद नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। एग्जिस्टेंशलिज्म एंड करिकुलम, अकॉर्डिंग टू दैम करिकुलम जो है द करिकुलम वुड अवॉइड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑन स्ट्रक्चर डिसिप्लिन, वो सिस्टमेटिक नॉलेज स्ट्रक्चर डिसिप्लिन को जो है वो अवॉइड करती हैं और कहती हैं कि स्ट्रक्चर डिसिप्लिन ही होने चाहिए। ये भी जो है ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच है। स्टूडेंट्स आर फ्री टू सेलेक्ट फ्रॉम मैनी अवेलेबल लर्निंग सिचुएशंस, और वो कहते हैं कि बच्चों को फ्रीडम होना चाहिए कि लर्निंग सिचुएशन में वो जो भी सिलेक्ट करना चाहें। द लर्नर्स चूज़ द नॉलेज दे विश टू प्रोजेस, बच्चे जिस तरह का भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं उनको उसके लिए पूरा इख्तियार होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एजुकेशन, choices that each person has to make and that education is a process of developing consciousness about the freedom to choose and the meaning of responsibility for one's choices। वो कहते हैं कि एजुकेशन में आप देखें कि हर पर्सन को कहते हैं कि क्या होना चाहिए कि वो अपनी कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट करे, फ्रीडम होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड टीचर का जो रोल है, टीचर का रोल एग्जिस्टेंशियलिज्म में कहते हैं टीचर कल्टिवेट्स पर्सनल चॉइसेस एंड इंडिविजुअल सेल्फ डेफिनेशन। एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, सेल्फ एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेरिमेंटेशन है, मेथड्स एंड मीडिया है दैट इलस्ट्रेट इमोशंस फीलिंग एंड इनसाइट्स। ठीक है, तो टीचर का रोल जो इसमें है वो भी यही है, फैसिलिटेटर का है। और वो कहते हैं कि मेथड टीचिंग में बच्चे खुद से सेल्फ एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड होना चाहिए और इसमें आप जो है अपनी खुद सेल्फ अपने एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।